Hello. Yes, sir. Can you hear my sound? Yes, sir. वो जो जिसका ऑडियो ऑन है ना अननेसेसरी वो बंद कर दो. Actually, in last lecture we have completed the portion about the Pitta dosha. In this lecture, we are going to starting regarding the Kapha dosha. Actually, Kapha dosha related whatever the conditions related Nirukti, its paryay, where it is located, which is the main functions, what are the types are there, the types, their locations and their functions. And also that Uddhi and Share. These points we want to discuss in this. And there we know that there are Bodhak Kapha, Avlamba Kapha, Kledak Kapha, Tarpak Kapha, and Seshak Kapha. These 5 types of the Kapha doshas are there. That one by one we are going to discuss. Among that, the first one definition or Vitpatti we can see that Kena Jalena Falati iti Kapaha means actually Falati means in to go or to increase, and that whatever the entity which is present in our body which increases when contact with the jala or when contact with the water, that particular entity is called as the kapha dosha. Already you know that kapha dosha is there, that kapha dosha when get come in contact with any type of the liquid or watery contents, at that time its quantity get increased, and that's why kapha dosha means it is we should consider that it is like the liquid contents are there, solidified some semi-solid contents are there which increase their density or increase in their number or increase in their size after adding of the water, and that particularly it is called as the kapha dosha. And that's actually this kapha is also called as the sleshma. Sleshma is nothing but actually it is derived from the slish dhatu, and slish dhatu is nothing but sanyog, means which is responsible for union, which is responsible to unite the things, and that is considered as the kapha dosha. Write this definition. First श्लोका और the second श्लोका, 2 श्लोका लिखो. सर स्टुडंट वेटिंग मध्ये आहेत. हे लिहून घ्या बाकीचे तोपर्यंत. जगन्नाथ सूर्यवंशी कोण आहे? जगन्नाथ सूर्यवंशी. The dosh present in our body which grows or increases when contact with jala, water. Sleshma word is derived from श्लेष धातु. वो श्लेष वर्ड भी लिखा हुआ है देखो उस एक्सप्रेशन में, which is considered as union of molecules. That we can say that glucose, which is having the molecular weight near about 180, and which consists of the molecules like nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen. These are number of molecules are there. That number of molecules joins together and to form the certain substance. The substance is nothing but the it is the due to the union of that particular molecules along with the that particular kapha. That we can consider that suppose we want to make a certain
wooden some particles. At that time, with Fevicol, we joined the two particularly some molecules along with each other, and that joining can form any wooden based some material. And for that purpose, that wooden based material, it is the dravya substance, but that substance can get joined with each other with the help of that Fevicol. In that way, kapha dosha is work as a Fevicol in our body. That nothing but to join the things, to unite the things, to union the things. Or to unite the molecules. For that purpose, this kapha dosha is the most important entity which is present in our body, and that's why it is responsible for union of molecules. That slisha, it is also called as slisha alingane. Alingane is nothing but to come forward and to join together. That is called as the alingana. Next, actually, these particularly kapha dosha having two main synonyms are there. One is the sleshma, and already we have seen sleshma alingane hai. Alingane is nothing but it is responsible to join or to come together, to bring together. That is the main action of the kapha dosha. And another one is the balasa. Balasa means it is considered as the actually strength of the body by which the person gets strength, and that is called as the balasa. That is, we can consider the weight, power, strength is the thing, but balasa. These are the two synonyms are there, sleshma and balas. Write this. Paryay, synonyms. Sleshma and balas. Sir, waiting list student. Sleshma means slisha alingane. मेरा फ्लेवर में कौन है ना अदरक फ्लेवर साउथ फ्लेवर है खाना खट्टा मेरा खट्टा means process of joining of molecules. Process of joining of molecules. And balasa means bala, power, strength means balas. Next, actually, when we see the Swarup, who it is there, in which Swarup it is there, that way it is actually considered the Somya. Means it is a very mild in nature. That's why not having any Tikshna Guna or Ushna Guna, that type of, as compared to Pitta. As Vata, you know that Avyakta Vyakta Karmamcha, Swarup is there. That nothing but Vata is unable to visualize, but we can experience it by its functions. In that way, kapha is nothing but it is sthira. Sthira means it is actually stable. And actually, when we consider the Panchbhautik constitution of this, actually it is Panchbhautik, but among that, Prithvi and Apa Mahabhuta predominance is there. That's why Prithvi and Apa predominance, Panchbhautik constituents, it is there. Sangatana means composition. Udoliko, Swarup and composition. Swarup sthir hai, stable. और कंपोजिशन जो है कंपोजिशन कैसा है पंचभौतिक है, उसमें पृथ्वी एंड आप महाभूत का प्राधान्य है. वात में कौन से महाभूत का प्राधान्य है? वायु. वायु एंड आकाश. पित्त में अग्नि महाभूत और कफ में पृथ्वी एंड जल महाभूत. ठीक, देखो एक चिल्ड्रन का एग्जांपल लिए
एक्चुअली हमारा जो कुछ वात पित्त कफ है ये हमारी लाइफ के अनुसार भी प्रिडोमिनेंस रहते हैं। तो बाल्यावस्था जो चाइल्ड एज ग्रुप में है कफ प्रिडोमिनेंस रहता है, मिडिल एज ग्रुप में पित्त प्रिडोमिनेंस रहता है, और ओल्ड एज जो होता है उसमें वात का प्रिडोमिनेंस रहता है। आपको पता है जॉइंट पेन के डिसऑर्डर्स मोस्टली कौन से एज ग्रुप में होते हैं? ओल्ड एज। ओल्ड एज में होते हैं। एक्चुअली वो क्या है, उसके लिए एक श्लोका एक्सप्लेन किया है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य ते मध्याधिका क्रमात। बोले तो वय मीन्स एज ग्रुप, अहो मीन्स डे टाइम, रात्र मीन्स नाइट टाइम, भुक्त मीन्स खाना खाने के बाद, बोले तो आफ्टर मील। इसमें ते अंत ते मध्याधिका क्रमात, बोले तो अंत में रहेगा वात, मध्य में रहेगा पित्त, और आदि बोले तो स्टार्टिंग में रहेगा कफ। इसके लिए खाना खाने के बाद तुरंत आप थोड़ा देखे तो अभी जिसने खाना खाया उनको एक्सपीरियंस रहेगा, थोड़ा ऐसा कफ का आलस्य थोड़ा क्रिएट होता है, थोड़ा लेजीनेस क्रिएट होता है, थोड़ा मतलब ऐसा बॉडी थोड़ा हेवीनेस है ऐसा लगता है, वो कफ के लक्षण रहते हैं। बाद में थोड़ा टाइम जाने के बाद जो हमारा पित्त दोष स्टिमुलेट होने लगता है, उससे थोड़ा सा मतलब डाइजेशन शुरू होता है प्रॉपरली, और आपको थोड़ा सा पित्त दोष का प्रोडोमिनेंस फील होता है। और उसके बाद वात का प्रोडोमिनेंस बोले तो आपका पेट जो है, पेट कंप्लीटली एम्प्टी हुआ जैसा आपको फील होता है वायु आकाश महाभूत से। बोले तो ये क्या है, प्रोडोमिनेंस है। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य ते मध्याधिका क्रमात, बोले तो प्रोडोमिनेंट प्रकृति केस में। इसके क्वालिटीज क्या है वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा कि हर एक क्वालिटीज का क्या तो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस रहता है, तो उसको ये क्वालिटीज में अगर आप देखें तो स्निग्ध शीतो गुरु मंदाहा श्लक्ष्ण मृष्णा स्थिर कपाह, बोले तो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के फर्स्ट चैप्टर में ही 12th नंबर का श्लोक है कि ये कपदोष के गुण उधर लिखे हैं उन्होंने। वो कपदोष के क्वालिटीज क्या है, वो स्निग्ध है, वो ऑयली है, शीत बोले तो कोल्ड है, वो गुरु बोले तो हेवी है, मंद बोले तो हम बोल सकते कि वो स्लो है, उसके साथ श्लक्ष्ण मृष्ण स्थिर, बोले तो ये क्वालिटीज है। एक एक क्वालिटीज हम देखते जाएंगे। ये पहला श्लोका लिख के रखो, क्वालिटीज गुण। कफ गुण लिखो, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्ष्ण, स्थिर, मृष्ण। कफ का मेन काम क्या है, बॉडी को स्टेबल रखना, बाइंड करना मोलिक्यूल्स को, और बल प्रोवाइड करना। स्टेबिलिटी देना। तो उसमें स्निग्ध क्वालिटी जो है, उस स्निग्ध क्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, स्निग्ध एक कैसा है, स्निग्ध बोले तो हम बोलते हैं कि स्टिकीनेस। उस स्टिकीनेस से क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स इजीली एक दूसरे के साथ बाइंड हो सकते हैं। और जो कुछ संयोग उधर फॉर्म होता है, संयोग लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहता है, मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, लॉन्ग टर्म तक बाइंड रहता है। और वो बाइंडिंग कैपेसिटी स्निग्ध गुण से ही बहुत अच्छी तरह से मिलती है। इसके लिए स्निग्ध गुण बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वालिटी है। वो लिखो पहले स्निग्ध,
It is responsible for stickiness by which union and binding of molecules takes place. Union and binding of molecules takes place, which exist for long time. Which exist for long time. ये देखो ऑयल घी एक एग्जांपल्स है जो मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, यही सभी कफकर है, कफ बढ़ाने वाले हैं बॉडी में हमारी। उसके साथ शीत गुण जो है, शीत गुण क्या करता है, स्तंभन करता है। और स्तंभन बोले तो एक टाइप का उसमें क्या होता है कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी शीत गुण से बहुत अच्छी रहती है। आपको पता है, आपने वाटर ऐसा लिया और डीप फ्रीजर में रख दिया, उसका क्या होता है, आइस होता है। आइस होना बोले तो क्या है, वाटर के मोलिक्यूल्स है जो इजी फ्री मोलिक्यूल्स थे, वो फ्री रेडिकल्स सभी क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड होने के लिए क्या चाहिए, कोल्डनेस चाहिए। और ये क्या करता है, शीत गुण है, शीत गुण क्या करता है, उसके लिए हेल्प करता है। बोले तो जो कुछ बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने का काम कौन करता है, शीत गुण करता है। वो आपके ओन लैंग्वेज में लिख के रखो कि शीत क्वालिटी improves the binding capacity of the kapadosh and also causes stambhana. Stambhana means we should consider it is nothing but stoppage or obstacle to prevent it. मतलब हम ब्लीडिंग होने लगा तो उधर आइस लगाते, आइस लगाने के बाद ब्लीडिंग कम हो जाता है, वो क्या करता है, बाइंड करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है उधर के वेसल्स। स्तंभन, स्तंभन बोले तो क्लॉट फॉर्म होने जैसा। नेक्स्ट उसके साथ गुरु गुण है, गुरु क्वालिटी। एक्चुअली ये बृहन शक्ति बोलते हैं हम इसको। बृहन शक्ति बोले तो क्या करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम गुरु गुण करता है। एक्चुअली आप देखें तो गुरु क्वालिटीज का आपने क्या भी लिया, वो लॉन्ग टर्म लगता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए। इसके लिए जितना टाइम हमारे बॉडी में है उतना वो क्या जाता है, स्ट्रेंथ देता है। और गुरु गुण के जो कुछ क्वालिटीज रहते हैं वो क्या करते हैं, इजी मतलब वो डाइजेशन होने के लिए जितना टाइम लेते हैं उसके अनुसार वो क्या करते हैं कि द्रव्य में एक्चुअली बृहन करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। और बृहन बोले तो टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, उसके लिए गुरु गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गुण प्रोवाइड्स growth and development along with strength to the body. एक्चुअली गुरु बोले तो उसके दो मीनिंग रहते हैं, एक वेट है उसमें वो हेवी रहना, नहीं तो जो डाइजेशन होने के लिए हेवी रहना। हेवी फॉर डाइजेशन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द गुरु।
लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए क्या चाहिए आपके पास? गाड़ी। हाँ, सबसे पहले व्हीकल चाहिए। और व्हीकल कैसा चाहिए? वो स्पीड अच्छा रहना चाहिए या थोड़ा कम रहना चाहिए स्पीड? अच्छा। हाँ, ठीक है। अच्छा स्पीड रहे तो आपको लॉन्ग टर्म ड्राइव करने के लिए पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस बोले तो मंद गुण है। मंद बोले तो वो स्लो स्लो, लेकिन वो किसके लिए स्लो? यात्रा करो स्मृतः, मंदो यात्रा करो स्मृतः। बोले तो मंद क्या करता है? जो क्वालिटीज इजीली ब्रेक होने का मतलब वो सब मोलिक्यूल्स, वो मोलिक्यूल्स को बाइंड करके लॉन्ग पीरियड तक बाइंड करके रखना। इसके लिए हम बोलते हैं कि आत्मा और शरीर का संयोग है। आत्मा ने शरीर का संयोग क्यों नहीं छोड़ते? कि उसमें ये सब क्वालिटीज मेंटेन की जाती है दोष के। और जो कुछ परमाणु जो हम बोलते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ बाइंड हुए हैं, वो बाइंडिंग लॉन्ग टर्म तक बोले तो लाइफ टाइम उसमें रहने का क्या रहता है? चांस रहता है। उसके लिए मंद गुण, मंदो यात्रा करो स्मृतः। मंद गुण रिस्पॉन्सिबल फॉर to provide long-term binding of molecules. Which controls on वात दोष. सर रिपीट करा की एकदा. मंद गुण responsible for binding of molecules for long period or long time. And control on actions of kapha dosha. Control on actions of kapha dosha also done by manda guna. Also done by manda guna. उसके बाद श्लक्ष्ण है। श्लक्ष्ण बोले तो हम कंसिडर कर सकते कि जिसको हात में आप पकडे तो जो हात में नाही आ सकता, म्हणजे एक प्रकारे गुळगुळीत असं म्हणू शकतो आपण. पण ते काय ही क्वालिटी जी कशासाठी इम्पॉर्टंट असते? टू ओवरकम द वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यूज. बोले तो हमारे बॉडी में ऑलवेज एक मैकेनिज्म चलते रहता है। डेट मतलब जो ओल्ड टिश्यूज है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उसके जगह नए टिश्यूज आ जाते हैं। वो टाइम वो डिकम्पोज कुछ मटेरियल ऐसा मतलब वेस्ट में मतलब वो जो कुछ मटेरियल है उसमें से मतलब एक 100 ml गया तो 100 ml कंप्लीटली हम डिफ्यूज कर सकते हैं। वो है श्लक्ष्ण गुण से। इसके लिए वो बाइंड रख सकते हैं उधर टिश्यू के यहाँ, वो बाइंड रखना काम किसका है? श्लक्ष्ण गुण का है। उसके लिए श्लक्ष्ण गुण रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ओवरकम वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज. And mrusna means covering or coating. Kapadosh provides the coating मोस्टली कोटिंग जो है, कोटिंग क्या करता है? मोस्टली हमारे जो जीआई के ऑर्गन्स है,
जीआई के ऑर्गन्स में इंटरनल जो म्यूकोजल कोटिंग होता है उसको ही हम कंसिडर कर सकते हैं कि मृष्ण क्वालिटी ऑफ द कफदोष है। उससे आपने समझो ओरल कैविटी में थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ पंजेंट और ऐसा कुछ ले लिया, तभी भी आपके मतलब जो टंग और इसके कोटिंग होने से उधर इंजुरीज नहीं होते, उसका मेन कॉज रहता है वो मृष्ण क्वालिटी। उसके साथ स्थिर क्वालिटी है, स्थिर बोले तो धारण करना, बोले तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रखने का काम किसका है, कफदोष का है। उसमें दो प्रकार का है कि एक लाइफ बहुत टाइम तक स्टेबल रख सकता है, लाइफ इवेंट्स मतलब लाइफ का टाइम ज्यादा हो सकता है। दूसरा है सिंगल सीट जो है, सीट के ऊपर ही उधर स्थिर रहना, बोले तो आप जो किधर अलॉटेड जो सीट है, अलॉटेड सीट के यहाँ ही रहना स्थिर क्वालिटी का लक्षण है। एक्चुअली उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि एक बस है, बस में ट्रैवल करते वक्त जो वात वाले हैं पहले उधर उधर घूमते, इधर उधर देखते देखते बैठ जाते हैं, पित्त वाला एग्जैक्ट सीट पे बैठता है और कफ वाला जिधर जल्दी सीट मिले बोले तो उधर जाने के बाद कंडक्टर की सीट हो तो उधर भी बैठ जाता है। एक्चुअली वो क्वालिटीज में डिफरेंस है, क्योंकि गुरु जो स्थिर गुण है, स्थिर गुण क्या करता है, इजी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और जल्दी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए टाइम ज्यादा नहीं जाता। इसके लिए स्थिर गुण प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड डज धारण होल्डिंग। उसके बाद हमें देखना है कि कफ के मेन क्वालिटीज क्या रहते हैं, उसके लोकेशंस क्या है, स्नेह बंद बोले तो क्या रहा है, कैसे संधि संश्लेषण करता है, रोपण कैसे करता है, वुंड हीलिंग कैसे करता है, उसके मेन फंक्शंस क्या है, उसके मतलब कफ के स्थान कौन से, लोकेशन क्या है, टाइप्स कौन से है, वो सब हम क्या करते जाएंगे, एक एक करते डिस्कस करते जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने निरुक्ति, उसका पर्याय, उसकी स्वरूप कैसा है, उसमें भूतात्मक कंस्ट्रक्शन कौन सा है और उसके साथ उसके क्वालिटीज कौन कौन से रहते हैं वो सब हमने देखा है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कप के स्थान, उसके कर्म और उसके साथ उसके जो सब टाइप्स है वो सब टाइप्स के एक एक करते हम देखते जाएंगे। इसमें कुछ क्वेरी है क्या कफ के लोकेशंस में? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोकेशन का श्लोक ऐड करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वो नया मतलब जो कुछ कपदोष का हमारा चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, बाकी दो इसके साथ कंपेयर करेंगे। हा जगन्नाथ सूर्यवंशी कोण आहे? न्यू स्टुडंट आहे सर. तो कधी जॉईन झालाय? 4 दिवस 4-5 दिवस. मग त्याला हे करा, ऑडिओ म्यूट करून ठेवायचं म्हणून सांगा, त्याला माहित नसणार आहे. माहिती आहे सर त्याला. मग का ऑडिओ ऑन ठेवतोय तो? बरं, बाकी कोणाला काय प्रॉब्लेम? श्लोका बाय केले सगळ्यांनी? हो सर. पूर्ण जो मटेरियलचा पासवर्ड आहे, जो झिप फाईलचा पासवर्ड आहे तो व्हिडिओ मध्ये दिलाय, म्हणून व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा. तर चला भावना कोणत्याच प्रकारे टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. भावना व्हिडिओ सुरू करण्याअगोदर मी तुम्हाला एका ऍप बद्दल माहिती सांगणार आहे. त्या ऍपचं नाव आहे भावना टेक्स्टाईल ऍप. आणि भावना ऍप वरून तुम्ही इथं जे 9 गुण जास्त पैसे तुम्ही इथं अर्न करू शकता. सिंपल मध्ये भावना तुम्हाला इथं एक नंबर प्रिडिक्ट करायचा आहे आणि जर तुमचं जे प्रिडिक्शन राईट आलं तर तुम्हाला इथे 9 गुण जास्त पैसे इथे मिळू शकतात. म्हणजे जर तुम्ही इथं 100 रुपये लावले तर तुमचं प्रिडिक्शन जर बरोबर तुम्ही इथं 900 रुपयापर्यंत तुम्ही चांगल्या प्रकारे अर्निंग करू शकता. प्रिडिक्शन लावण्या अगोदर तुम्हाला इथे जे यांची जी विनिंग लिस्ट आहे तुम्हाला इथं चेक करायची आहे. तुम्ही इथे बघून इथं यांची जी विनिंग लिस्ट आहे तुम्ही इथं चेक करू शकता. खूप चांगलं आहे आणि जर याची जी लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे, तिथून तुम्ही ते इझिली डाउनलोड करू शकता. जर भावना तुम्हाला डाउनलोड मध्ये काही पण प्रॉब्लेम आला तर तुमचं जे डिफॉल्ट ब्राउझर आहे त्याचा जो कॅच आहे तुम्हाला क्लिअर करायचा आहे आणि परत तुम्हाला ऍप डाउनलोड करून पाहिजे. भावना नक्की ऍप डाउनलोड करा. लिंक. हॅलो हॅलो, जगन्नाथचा फ्रेंड कोण आहे? कोण आहे का नाही फ्रेंड त्याचा? नाही सर. त्याचा नंबर? त्याचा नंबर तर आहे का नाही? हॅलो, आहे सर.
हा, ग्रुपला काय करायचं सांगा, त्याला एक ग्रुप वरती मेसेज टाका, त्याला लेक्चर संपलं की मला कॉल करायला सांगा. हो सर. ठीक आहे. कोण? अनुसे अपराज काय? अपराज अनुसे. श्लोका बाहेर केलेस का रे? रंजक पित्ताचा श्लोका सांग. नाही, पाठ नाही केलं. काय केलंस रे? कल देखो सभी को बोलता हूँ, अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उद्या सगळ्यांचे श्लोक बाहेर पाहिजेत. उद्या वाताचे श्लोक सगळ्यांनी बाहेर करून ठेवायचे. मी त्यातले विचारणार, कुठलाही श्लोक विचारला जाईल कुणाला पण, ते सगळ्यांना बाहेर पाहिजेत. वाताचे श्लोक उद्या बाहेर करायचे सगळ्यांनी सांगतो. वात पित्त कफ जसं कम्प्लीट होत जाईल तसे सगळे श्लोका बाहेर पाहिजेत. सगळे श्लोका म्हणजे किती असतात श्लोका? एक दोषांचे जे हे आहेत ते निरुक्ती, स्थान, गुण, कर्म, एक 4 श्लोक. वृद्धिक्षयाचे 2 म्हणजे 6 आणि दोषांचे टाइप्स ह्याचे 5 म्हणजे 11 श्लोक करायला लागतात फक्त आपल्याला. तेवढे करू शकतोय आपण, अगदी निवांत करू शकतोय. वेळ असतोय आपल्याला भरपूर, फक्त स्टडी करायचा. श्वेता कोण आहे? श्वेता. येस सर. श्वेता, उदानवायूचा श्लोका सांग. उद्या सांगते सर. उद्या श्लोका बाहेर पाहिजे सगळ्यांचे. कल्याणी साबळे, येस सर. श्लोका बाहेर केलेस? सगळे नाही झाले सर, पण झाले. कुठला झाला तू सांग एक. अपान वाईचा सांगते. अपानो अपान श्रोणी बस्तिमेंद्र उरु गोचर शुक्रार्थ व सुकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया. गुड. आकाश डुकरे, सर. श्लोका सांग कुठला पण एक. उद्या सांगतो. पवन इंगळे. हॅलो सर. हा सांग एक श्लोक सांग, कुठला केलायस का? नाव सांगतो सर, 1 मिनिट. बघून सांगू नको. प्रतीक पाटील. हा सर. एक श्लोक सांग. तत्र वृक्षो लघुशिता खरा सूक्ष्म चलो अनिला. कशाचा आहे? क्वालिटीज ऑफ वात. करेक्ट. साक्षी शिंदे. हा सर. तू एक श्लोका सांग कुठला पण. पित्तं भक्ती उष्मदर्शनैः क्षुत्रुटृची प्रभा मेधादि शौर्य तनुमार्दवैः. कशाचा श्लोक आहे सांग. पित्ताचे फंक्शन्स आहेत सर हे. ओके ठीक आहे. उद्या सगळेजण श्लोका बाहेर करा आणि त्या जगन्नाथला कॉल करायला सांगा.